Hello everyone, I hope you guys are doing good. Great. So here in this video, we are doing the evening shift. Evening shift, uh, UGC Net English exam review. Right. So these are the questions, screenshots which were sent to me by one of my students. Right. So here we're going to analyze them, and there are around 60 questions we have here. Right. And one by one we will go through them and know that what was the difficulty level of these questions and how many questions you could have solved, how could you have solved, and how these questions will help us to prepare and craft the strategy for our another attempt. Okay, so let's start with the very first question here: praise of menstruation. So obviously this question was new to us. This poem is a new poem that we are coming across in this question here, right? But the difficulty level of this question also depend on the other three options which were given. If they were something which you could have eliminated easily, then we can call it, it could have been a easy to moderate level question, right? But since it's a new author, so if you were not able to attempt this question, don't bother about it, because out of 100, if you cannot attempt and correct around 30 to 35 questions between this range, I mean, this is okay. This is completely fine. 65 plus can easily get you an JRF, right? But the another good thing is that students said that the paper one was easy comparatively. It was relatively easy if you compare to the level of the paper two in the evening shift. And they are saying that I have like uh, I have corrected about 40 plus questions. It was a good paper. I had invested heavily on the data interpretation part, and this is something I have told my each and every student कि बेटा एक DI का क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करना है. ये मेरा फॉर्मूला बच्चों को पहले से है, और आप लोग भी इस चीज को क्या है, अडॉप्ट कर सकते हो. मैंने पहले से ये बच्चों को बोला है कि जब भी जैसे ही बच्चा क्लास में आता है ना, कि आप जो है अपना एक डीआई का क्वेश्चन अभी से आप शुरू कर दो. ठीक है. अगर आप भी अभी दिसंबर सेशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, ठीक है, तो मेरा आप लोगों के लिए भी यही रहेगा. आप चाहे लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस लो, आप चाहे स्टडी मटेरियल लो, आप चाहे मॉक टेस्ट लो, मेरा आप लोगों के लिए भी ये एडवाइस रहेगी, सजेशन रहेगा कि आप अभी से ही एक डीआई का क्वेश्चन रोज सॉल्व करना शुरू कर दो, बिकॉज इट्स 10 marks राइट देयर, एंड इट्स अ बिग नंबर. You can't miss on it. Students are failing this exam from a very minor margin. So 10 marks, you can understand what is the value of these 10 marks, right? ये बात है. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है. इट वाज ऑब्वियसली हैव बीन easy one for you. सलमान रश्दी हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, मुंबई born, he is an Indian born author. It was an easy question we have. Then we have Perumal Murugan, which is not his work. Then you have to choose one of the work here. South Indian author, new author again we came across. And if you couldn't have attempted this question correctly, it's okay. Sometime, just with the guessworks, taking a blind shot, we we do questions correct, right? So it just entirely depends how lucky you were. Now again, Neander, essay on criticism, right? Essay on dramatic poesy by the Dryden. So it was an easy one. Works of Wollstonecraft, the first lady to write about the woman life, right? Their experiences in feminism, in feminist work we study her. Again, it was an easy question you have, right? Uh, then we have the sixth question here. Shakespeare plays in chronology. That could have been a bit tricky one, but if you're somebody preparing very sincerely and decently, you would have surely done it well. Then we have the seventh one here. The Long Revolution by Raymond Williams covered 350 canonical work. It was a work where they were asking in depth in this question here. So I went through
this work, and I did a bit of a research. So I found it was from a 70-40 to 90-40, right? It talks about the culture, that how what is the importance of a culture in the field of culture studies, right? Just like the Industrial Revolution, Enlightenment, or any other revolution, there is a revolution in the field of culture. That's what he has primarily discussed over here. And he talk about the English reading public. He talk about the press, that how it's growing, what its growth, and what are the impact it has. So it is a very seminal work. ठीक है, बहुत ही एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है ये. रिसर्च मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन आते हैं. 10th हमारा यूनिट है. नाउ यू नो इट्स वेरी कंपल्सरी बिकॉज ईच वन ऑफ यू आफ्टर योर JRF, what will you do? What will you do? Just like me, as I did, right? You will pursue your PhD as I am pursuing. You will get your JRF. ठीक है. और 37,000 तो आपको यूजीसी देता है यूजीसी. इसके अलावा आपको 80% जो है HRA मिलता है ना? हाउस रेंट अलाउंस जो आपको मिलता है. अगर रूरल एरिया में है तो 9% मिलता है. ठीक है. अगर आपका अर्बन एरिया में है तो आपको 18% मिलता है. एंड इट गोज अप अराउंड 20,000 इन द केस ऑफ 18%. अगर रूरल एरिया में आपका इंस्टीट्यूशन पड़ता है तो ये जाता है आपका 40,320 रुपीज या 330 के आसपास. So that much you will be, it's a good living, I would say. It's a good living. ठीक है. अच्छी लिविंग आप जी लोगे अपने घर की सलाखों से बाहर. सलाखें तो क्या कहूँ, सबके लिए सलाखें नहीं होती, बट यू विल हैव अ गुड लिविंग, राइट? यू विल गो टू दी अदर प्लेस. ऐसे मत रहना कि अपने ही स्टेट में कहीं एडमिशन ले ली. बाहर जाओ, चीजें एक्सप्लोर करो, राइट? गेट आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ योर स्टेट. एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. फिर लगेगा कि तुम जिंदा हो. Ninth, the first female Dalit autobiography. It was written by the Shantabai. Right? It is a kaleidoscope of. It was something like that. I had. Yeah, but it was by the Shantabai. I had written the solution. मैंने इसके solution सबके I have collected all of their solution. मैंने हर एक question को यहाँ पे solve करा है. मैंने हर एक question को ढंग से देखा है, research किया है कि कहाँ से क्या question आया है. ठीक है. I have spent a good amount of time. 8 से 10 घंटे I have spent on it. So शांताबाई is the one who wrote this work and that was around 1983 के आसपास उनका सबसे पहले आया था, right? जैसे कि आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन है, where he wrote about the kind of atrocities that he has to face. In a similar way, she wrote that even though they had a good living, they had a good profession, but still, when they come back to their village, they had to follow the orders of the upper caste people. Post-colonialism, again, एक easy one है. It wasn't easy, I would say. It could have been a bit difficult, है ना? और इवन दो अगर आप दलित लिटरेचर का अगर आप विकीपीडिया पेज स्टडी करोगे तो आपको सारी डिटेल वहीं पे मिल जाती है. ठीक है. Then we have the 11th one, Chinua Achebe works, order triology, easy to moderate level, I would say. Plato's imitation एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, so you must have been able to solve this. Then है Mikhail Bakhtin, dialogic imagination, statement based. If there was imagination, if there was any statement, I have made you such a question very very clear because literary theory मेरा खुद एक favorite subject है. मुझे बहुत अच्छा लगता है. ठीक है. किसी चीज को एनालाइज करना, क्रिटिकली उस चीज को एनालाइज करना और देखना दैट हाउ थिंग्स आर फंक्शनिंग इन दिस स्टेटमेंट, है ना? तो मैंने तो बहुत अच्छे से ये आप लोगों को चीजें करवाई हैं, बल्कि मैंने इस पे शॉर्ट्स भी बनाए हैं. डायलॉजिक इमेजिनेशन में ही प्राइमरीली स्पीक दैट देयर शुड बी द हेटेरोजेनिटी. ठीक है. देयर शुड बी मल्टीपल नैरेटिव्स. ठीक है. कोई एक वॉइस डोमिनेटिव नहीं होनी चाहिए. मल्टीप्लिसिटी ऑफ नैरेटिव्स के बारे में बात की जाती है और ये आपका एडिटेड और एक ट्रांसलेटेड वर्क था. बिकॉज ओरिजिनली तो मिखेल बाख्तिन वाज अ रशियन ऑथर ना. वो क्या है, एक रशियन ऑथर है ओरिजिनली, तो ट्रांसलेट तो करना पड़ेगा, है ना? ओके. नाउ एब्स्ट्रैक्ट पोम के बारे में है. हु कॉइन्ड दिस? एडिथ सिटवेल इज द वन हु हैज कॉइन्ड दिस एब्स्ट्रैक्ट पोम. आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट पोम में आपका ऐसा है कि इसमें जो वर्ड्स है ना आपके, दे प्राइमरीली पे अटेंशन टू दैट कि स्ट्रक्चर कैसा है, वर्ड क्या है, वर्ड कैसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं, rather than going into the deep meaning of those words or that poem, है ना?
स्कोपस थ्योरी आपकी फॉलो की जाती है ट्रांसलेशन थ्योरी में। इसमें ट्रांसलेशन थ्योरी में आपकी ये चीजें फॉलो की जाती है। तो अभी जो आपकी लेटेस्ट थ्योरीज है, जैसे कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ पीएचडी का, तो मुझसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि अभी आपके लेटेस्ट जो है ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है ना। डिजिटल ह्यूमैनिटीज है, ट्रांसलेशन स्टडीज हैं, ठीक है, ओशन स्टडीज हैं, तो बहुत सारी स्टडीज हैं, है ना। तो इन सभी थ्योरी से भी आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर इन पे कोई ऐसा नहीं होता है कि अब मैं मान सकता हूँ, अगर मैं अपने आप को देखूं कि जब मैं बिगिनर था, सो मे बी आई वुडंट हैव बीन एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। स्कोपस हो गया, है ना, ये कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नए लगे हों बच्चों को। काय पोचे, ठीक है। फिल्म तो हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं देखना, और यहाँ पे फिल्मों से ही क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। सो फिर तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो नेशनल अवार्ड विनिंग जो मूवीज हैं, उनको भी आप देख लिया करो यार। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी अभी हमारा कोर्स वर्क चला है आजकल पीएचडी का, तो मैं ना उसमें कई बार थोड़ा रेफरेंस दे देते हैं मूवीज का, तो मैं तो आजकल फिर मूवीज देख लेता हूँ। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे मूवी देखने के लिए कहा था एक, मैंने वो भी देख ली। देख क्या ली है, कुछ मिनट की देखी है अभी, हाफ एन आवर देखी होगी मैंने। बिसाइड दिस कोर्स वर्क में एक मूवी ऐसे ही कुछ बीच में से, पता नहीं क्या कोई स्टेटमेंट था, वो समथिंग कि सैम बहादुर का वहां पे उन्होंने रेफरेंस दिया। सो मैंने वो मूवी देखी नहीं थी, कि नहीं देखता था, आप स्टडी कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो। तो फिर मैंने अभी एक दो दिन पहले शाम को वो मूवी देखी। इट्स अ गुड मूवी यार। तो आपको मूवीज देखते रहना चाहिए। कॉमेडी ऑफ एरर वाज नॉट अडेप्टेड इनटू लव इन द वर्ड। अंगूर में ये अडॉप्टेड है, दो दूनी चार में भी ये अडॉप्टेड है, ये मैंने देखा है। कॉमेडी ऑफ एरर में बॉयज फ्रॉम द सैरेकस तो थे ही थे, दे वर बोथ फ्रॉम द सैरेकस ना, वो सैरेकस से थे, एंड दे वर ट्विंस, सो दे वर एरर इन रिकॉग्नाइजिंग देम, है ना। समटाइम people used to do mistake in in taking the one person for the other। तो वो उसमें कुछ चीजें थी, पर अंगूर में और दो दूनी चार में ये अडॉप्टेड है। ठीक है, अब इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है क्या क्या ऑप्शंस हैं, पर इन दो में तो थी। अगर इन दो को आप एलिमिनेट कर सकते तो फिर यू कुड हैव टेकन, और आई थिंक इसमें भी रहेगा, क्योंकि बॉयज फ्रॉम सैरेकस, अब ये थोड़ा ट्रिकी भी है ना। ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, पर इन दोनों में तो ये अडॉप्टेड है, दो दूनी चार में और अंगूर में। ये मैंने थोड़ा रिसर्च किया, इसमें मैंने रिसर्च किया है ना। और बाकी 18th पे आते हैं हम, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन अनफिनिश्ड मैन। ये तो निज़िम एजेकिल की है, एंड दिस ऑथर हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम लास्ट मेनी मेनी इयर्स। ठीक है, तो इस ऑथर को तो दिस इज तो मस्ट रीड। ठीक है, जो भी आपके प्रोमिनेंट ऑथर्स, आपके जो पोएट्स हैं, इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, जो आपके ऑथर हैं, हु द इंडियन ऑथर हु आर राइटिंग इन इंग्लिश and the prominent one, so make sure you cover all of their works। कम से कम नाम, जो तो मेजर वर्क्स होते हैं उनकी तो समरी पढ़नी पड़ती है, जैसे कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, सो वी हैव टू रीड समरी, वी हैव टू go for all the factual details of this work। But besides, if there is any other work which they have written, means the entire bibliography of the author, so it becomes very very important when it comes to the major authors। Then we have the Kit Kat Club, नॉन मेंबर्स जॉर्ज एथरीज। ठीक है, तो ये तो आपका एक प्राइमरीली एक पॉलिटिकल ग्रुप था ना, विग पार्टी। आपने देखा विग पार्टी थी, आपके टोरी थे, ठीक है। तो विग पार्टीज का एक ये आपका ग्रुप हुआ करता था। तो सैमुअल जॉनसन वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, इतना मुझे पता है, एंड रिचर्ड स्टील एंड एडिसन वर पार्ट ऑफ इट। वो किटकैट क्लब के मेंबर थे, राइट। और रेस्टोरेशन जो ड्रामा है हमारे, उसके जो ड्रामेटिस्ट थे, दे वर आल्सो द मेंबर ऑफ इट। Then we have the Tales from Firoz Shah Bagh Rohin Ministry. This is a collection of the 11 poems, 11 short stories। तो उन शॉर्ट स्टोरीज के नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। Then come the 21st, Twinkle Twinkle Little Star, Wee Willie Winky, Mary Had a Little Lamb। So ये आपके नर्सरी राइम्स हैं। Old Mother Herbert, match with the authors, you had to match them with the author। मॉरिस ईएम फॉस्टर का होमोसेक्सुअल वर्क है, इंपॉर्टेंट वन। मैंने बहुत सारी ये चीजें ऑलमोस्ट आपकी कवर की हुई हैं अपने नोट्स में, ठीक है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को, यू शुड गो फॉर स्टडी मटेरियल।
ठीक है, बिकॉज आई हैव कम दिस फार, मैं भी इस नेट की जर्नी से गया हूँ, जेआरएफ की जर्नी से गया हूँ, ठीक है, एंड नाउ आई एम परसुइंग माय पीएचडी। तो माय स्टडी मटेरियल इज इमेंसली इंपॉर्टेंट, आई वुड से, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब ब्रिटिश लिटरेचर की बुकलेट तो मुझे नहीं लगता कि उतने अच्छे से किसी ने कवर किया होगा, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर आप लोग खुद उस चीज को देखेंगे, है ना। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, विच आर इम्पोर्टेंट टू हैव, मस्ट टू हैव, यू शुड गो फॉर दैट। बाकी जो लाइव एंड रिकॉर्डेड जो क्लासेस है, मेरे मेरे रिकॉर्डेड क्लासेस, अब तो क्योंकि मैंने पूरा अपना जो है, I have recorded those lectures. Live classes, I'll give you on these topics. These new topics are asked here. Sharan Kumar Limble, Akarmashi. He has talked about, I think, the aesthetic beauty, Dalit aesthetics के बारे में, I think Sharan Kumar Limble बात करते हैं, if I'm not wrong. So all these new topics which are asked here, ended here, on those topics I will take you live classes. जिसके लिए आपको notification मिलता है on WhatsApp and the app पे भी मिलता है. So I would say to all of you who are struggling to qualify this exam, you must go for study material. And if there's anyone in your vicinity, in your proximity, preparing for this examination, you should tell them. उनकी हेल्प होगी, उनका टाइम बचेगा, उन्हें एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, एंड दे will be through this exam. Maybe in their life they wanted to do something else, but right now they are stuck with it कि नहीं, मुझे एक बार एग्जाम क्रैक करना है। उनका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, and they will have more options in their life to pursue. बिकॉज़ राइट नाउ उन्हें अभी यही दिख रहा है। मे बी उनका उनका नेट हो गया, एंड आफ्टर दैट दे आर नॉट इनटू स्टडी। यार अब तो पीएचडी भी करनी पड़ती है, इसमें तो पढ़ते रहना पड़ता है। मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू दैट पार्ट। तो फिर वो कम से कम अपना कोई अलग जो उनका इंटरेस्ट है, एक पैशन है, उसे तो फॉलो कर पाएँगे। दैट विल बी माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। शरण कुमार लिम्बले, अकरमाशी, फर्स्ट एवर समथिंग मैगज़ीन, न्यू वर्ल्ड, अमेजिंग स्टोरीज़, ठीक है? तो ये कुछ नए से नाम हैं जिस तरीके से क्वेश्चन पुट ऑन किया गया है। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। सो ये चीज़ है। This one was an easy one. American authors chronology, Langston Hughes, James Baldwin, Maya Angelou. That was a moderate level question here. Then we have the American author chronology again, Toni Morrison, right? We have covered them, Toni Morrison. ये सारे known questions ही हैं, familiar questions हैं. ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें, ये भी एक known question है. Person who would define that language is synchronic at the present level at a specific time, ना Saussure ने, for in the Saussure ने. Bloom ठीक है, Muggy Night in Mumbai, ये known question है. Almond a novel, एक new question हमारे पास आया है. I think Japanese author है ये, Japanese, ये I think ये साउथ कोरिया से है. मैंने इस पे कल सर्च किया था, मैं भी भूल गया। हाँ, बट आई हैव बीन थ्रू दिस। सोहन वॉन एलमंड एक नॉवल है, सो इट वाज ऑब्वियसली अ न्यू क्वेश्चन। इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट, बट अगेन डिपेंड्स कि बाकी की 3 ऑप्शन क्या थे। अगर 3 ऐसे ऑप्शन थे जिसमें से आपको एक पता था, एंड दैट ऑप्शन वाज वेरी डिस्टिंक्टिव, डिफरेंट, आई मीन द अनदर ऑप्शंस वर नॉट रिपीटेड इन दैट ऑप्शन, तो आई थिंक वो आपके लिए ईज़ी होता पिकअप करना। मतलब अगर किसी एक ऑप्शन को एक बार ही दिया गया है, ठीक है, और वो डिस्टिंक्टिव है, एंड यू नो दैट दिस इज द ऑथर ऑफ दिस वर्क, तो वहां पे आप कई बार एक ही ऑप्शन के बेसिस पे अपना करेक्ट कर देते हो, बिकॉज वो आपको एक ही ऑप्शन में मिलता है, वो वाला नंबर। तो वहां से दैट वुड हैव बीन इजी फॉर यू टू सिलेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग है ना। तो थर्ड, रिसर्चर यूजिंग देयर ओन वर्क ऑफ कंटेम्प्रेरी, अगर तो अपना वर्क कर रहे हैं तो सेल्फ प्लेजरिज्म होगा, बट आपको वहां पे क्रेडिट तो देना पड़ता है। अगर साइट नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट नहीं देने हैं, तो वो प्लेजरिज्म ही माना जाएगा, ठीक है, वो प्लेजरिज्म ही माना जाएगा। हेलेनिस्टिक पीरियड आपका आता है, हेलेनिस्टिक पीरियड आपका है जो आपका एंशिएंट ग्रीक टाइम है ना, उसे आप जो है हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं। सिनिसिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, स्टोइसिज्म एंड अदर, ठीक है। तो एक्सप्रेशनिज्म भी आप जानते हैं, हमने स्टडी किया है, स्टोइसिज्म भी आप जानते हैं, ठीक है, दैट हाउ यू रेजिस्ट योरसेल्फ, एंड एक्सप्रेशनिज्म में टॉक्स अबाउट दैट हाउ यू एक्सप्रेस योर इंटरनल फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। इट वाज अ फॉर्म ऑफ अ पेंटिंग, इवन दो जो आपकी यूरोप में आई थी, है ना। ओके,
Birth of Tragedy by Friedrich Nietzsche. It was a new, because we haven't studied any of these works of the Friedrich Nietzsche, but I studied it. So Birth of Tragedy के बारे में he has written Apollonian and Dionysian. Apollonian is who is rational, right? And very systematic and organized. And Dionysian is someone who is very sensual, irrational, disordered. ठीक है, और ये दोनों qualities हमारे अंदर होती हैं. And here he has referred back to the the tragedies of the Greek era. उन सभी चीजों को इसमें डिस्कस किया गया है. पर ये दो क्वालिटीज हैं, आपको समझ आई होंगी कि क्या क्या है. ये हमारे अंदर होती हैं ये चीजें, है ना. सो यहाँ पे ये डायकोटमी, जो एक ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर्ड, है ना, और एक रैशनल एंड इरेशनल बीइंग जो हमारे अंदर है, उसको डिस्कस किया गया है. रेक्विन इन रागा. सो दिस इज मिस नीलम गौर. शी इज प्रोफेसर इन दी अलाहाबाद इंस्टीट्यूशन में है, वो इलाहाबाद में है ये प्रोफेसर्स आपके. सो उनको 2020 साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, और उनकी एक बुक जो है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्राग यूनिवर्सिटी. हाँ, जो आपके रशियन स्कूल ऑफ फॉर्मलिज्म है, वहाँ पे भी हम प्राग स्कूल के बारे में पढ़ते हैं. तो यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे उस करिकुलम में इनकी एक बुक को इंक्लूड किया गया है. नाउ ग्रुप साइकोलॉजी एंड ईगो, फ्रॉयड टॉक अबाउट दिस. एंड ये इनका वर्क है. आई वेंट थ्रू इट, आई स्टडी इट अ बिट. और ही टॉक अबाउट द व्हाट इज अवर साइकोलॉजी व्हेन वी आर इनटू द ग्रुप अराउंड द पीपल. ठीक है. तो आई थिंक यहाँ पे 3 other matches were there, so that would have been easy for you to pick up. पार्टीशन मूवीज ऑर्डर डोंट रिमेम्बर. ओके, सो पार्टीशन मूवी में यहाँ पे आपसे तमस पूछी गई थी. आई थिंक यहाँ पे एक तमस पूछी गई थी, जितना मुझे याद है. क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी लिया था आई थिंक. एक दो और जो हमने कुछ पढ़े हैं. ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान आई थिंक आई थिंक वाज देयर. तो ये कुछ ऑप्शंस थे. देन देयर इज अ कोट, इफ अ मैन विल बिगिन विद सर्टेनिटीज देन ही विल एंड अप विद डाउट्स. ऐसे करके है. पर अगर if you can dare to begin with the doubts, you might end up with the certainties. ठीक है. मतलब अगर आप डाउट के साथ शुरू कर सकते हो ना, that nothing is clear for you कि क्या होगा. if you start with the uncertainties, you will find your way out. अगर आप ये बोलोगे कि जब तक वो एक परफेक्ट मोमेंट नहीं आ जाता, तो आप डाउट में ही रहोगे. this is the quote by him. It doesn't end in certainties. If a man will begin with certainties, it might end up with the doubt, right? Culture and anarchy. ये तो आपको पता है, मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क है. तो ये हमारा क्रिटिसिज्म से आप वर्क देख लीजिए. रेनबो सीक्वल ऑफ वुमन इन लव. ठीक है, ये तो इजी वन था. ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट एबोरिजिनल पोएट ऑडगेरू नुनुकल, पता नहीं अब स्पेलिंग ठीक लिखी होगी. आई थिंक दिस इज द ऑथर वी हैड. आई थिंक ये प्रीवियसली भी पूछा गया था जून में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आर्क एंड रायंस वर्क इसलिए कहा जाता है कि जो आपका हर बार का क्वेश्चन पेपर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इट वेल. आर्क एंड रायंस वर्क सीक्वल मस्ट हैव बीन मॉडरेट लेवल फॉर यू, है ना, क्योंकि डेट्स आर बिट डिफिकल्ट टू रिमेंबर. A chronology of Indian writers, Darosio, Toru Dutt, Sarojini Naidu, ये तो easy रहा होगा. Uh, identify two graphic novelists. Now it depends what were in the options. ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का है. अब आते हैं मिरर एंड लैम्प, एम एच इब्राहिम, हमने किया है ये. ठीक है, ये तो वर्क बार बार पूछा गया है. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मिरर यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है कि जो आपका रोमांटिक एज है, वो रियलिटी को पोर्ट्रे करते हैं कि द वे वर्ल्ड इज अराउंड. ठीक है. नाउ लैम्प इज सिंबल फॉर द सोल, राइट, बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग देयर सोल. तो वो अपने इंटरनल थॉट्स को भी वहां पे डिपिक्ट करते हैं. वो खाली नॉट मेरली द आउटर वर्ल्ड इज बीइंग डिपिक्टेड, बट एज वेल एज द इंटरनल सोल. तो ये इस तरह के इन दोनों वर्ड के सिग्निफिकेंसेस हैं. नाउ लैंग्वेज एंड पैरोल, सिग्निफाइड, सिग्निफायर मैच्ड विद द मीनिंग, ये तो इजी ही था. थर्ड स्पेस भी हमारे लिए इजी था. मार्गरेट एटवुड नॉवल, मतलब लिटरेरी थ्योरी के तो क्वेश्चन मोस्टली डुएबल हैं. मार्गरेट एटवुड अगेन easy one. We have Virgil's Aeneid. We have then
It depends what would have been the statement here. Which CD does he create? Frankenstein को did I ask the creator? ठीक है, ये आपका ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडरेट लेवल का है. It can also be easy. It depends that if you could recall things at that time or not. बिग डैडी करैक्टर ये आपका टेनेसी विलियम्स का जो है क्या है, प्ले है ना, कैट ऑन अ टिन रूफ. तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर था. ठीक है, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया, ओवरव्यू था. पर अब अगले जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्या करें? एक तो मैंने आप बच्चों को बताया है. ठीक है, आप अपनी प्रेपरेशन मेरे साथ शुरू कर सकते हो बेटा. ठीक है, ऑनेस्टली, with determination, consistency, and discipline, you're gonna make it. I will give you that exam oriented content. You will have everything with you. आपको बस प्रेपरेशन अच्छे से करनी है, खुद के साथ ईमानदार रहना है, राइट? सो दैट इज माय एडवाइस. आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो. एंड देखो, अब इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना. ठीक है, जो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, वेरी सून यूजीसी भी अभी वो कुछ जगह, आई थिंक आपका वाराणसी जगह कहीं कहीं पे वो जो आपका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उसके एग्जाम फिर से कंडक्ट किए जाएंगे. दैट माइट डिले योर रिजल्ट एज वेल. तो उसकी वजह से डेट आगे एक्सटेंड होती रहती है. पर आपने अपनी तैयारी दिसंबर की शुरू कर देनी है. ठीक है, तो जो भी डाउट है प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. ऑल द बेस्ट.